working of laser, and after that I discussed what is ruby laser and what is helium neon laser, right? So we discussed these two types of laser in detail, how ruby laser works, what are the advantages, disadvantages of laser, and after that I discussed what is helium neon laser and how this helium neon laser works, right? So in today's class we will discuss about the semiconductor laser, because in the first lecture of this laser series I told you that there are different types of lasers are available in the market, like solid state laser, like gaseous laser, like semiconductor laser, or like CO2 laser. So our today topic is about the semiconductor laser, right? So semiconductor, all of you know, in your 12th class, you have a basic introduction about the semiconductor material. So can anybody tell me what is the definition of semiconductor material? In solids, we have three different types of material: conductors, semiconductors, and insulators. So बताइए what is the difference between these three materials? बताइए, anyone can reply. ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक कंप्लीट यूनिट था, अराउंड 9th या 10th क्लास फिजिक्स था. So you have basic idea about the semiconductor materials. In these semiconductor materials आपने पढ़े होंगे. You studied about the exchanging semiconductor materials. तो बताइए क्या होते हैं semiconductor materials? Okay, alright. So जो semiconductor materials होते हैं, it depends upon the energy band value. कि they have some certain value of energy gap. इसको हम energy gap के term में define करते हैं. And energy band gap of these semiconductor materials lies between conductor and insulator. So there is a position of semiconductor material. So energy band gap of these materials lies between conductor and insulator materials. Insulator has very large value of band gap, and about the conductor, they don't have any band gap. They in the overlap each other. In conductor, conduction band and valence band overlap to each other. So in semiconductor materials, they have energy band gap of order of 1 electron volt. In the semiconductor materials, in energy band gap का जो value है वो lies करता है in between insulator and conductor, and that is approximately order of 1 electron volt, right? तो जो आपका semiconductor laser है, it is type of LED. आपने LED के बारे में सुना होगा, that is light emitting diode. Light emitting diode. So in these semiconductor materials, active medium will be, because I told you that there are three components are required for the construction of any laser. So first is the active medium. So in here, active medium will be semiconducting material. इसके अंदर जो आपका एक्टिव मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा? That will be kind of semiconductor material. But what is the difference between this LED and semiconductor laser? I said कि आपका जो LED और semiconductor laser सेम रहता है, दोनों से हमें क्या मिलता है? We get light emit. दोनों से हमें क्या मिलता है? Light will be emitted. But the principle behind this semiconductor laser is totally different. ये लाइट के बाद क्या लिखा है मैम? Sorry? ये लाइट के बाद क्या लिखा है आपने ऊपर? हेलो, सभी को ऑडिबल हो रहे हैं? हम ज्यादा ऊपर लिख दिया. ये लाइट के बाद क्या लिखा है?
ओके ऑलराइट, तो मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो आपका जो एलईडी और सेमीकंडक्टर लेजर, दोनों से हमें लाइट एमिट होता है, बट वर्किंग प्रिंसिपल इज डिफरेंट। क्या आपका जो एलईडी है इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कुछ कुछ आ रही है मैम आवाज। आवाज सही नहीं आ रही मैम आपकी। और विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी सही है। विजिबिलिटी सही है मैम, आवाज नहीं आ रही मैम, थोड़ी कट के आ रही है। आवाज आज आपने लगता है माइक यूज नहीं किया। आई डोंट हैव माइक टुडे, तो ठीक है मैं थोड़ा सा पास में के बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सेमीकंडक्टर लेजर है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cumulative emission। और सेमीकंडक्टर लेजर दोनों का जो आउटपुट होगा दैट इज सेम, बट इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों का डिफरेंट है। कि जो आपका एलईडी है, एलईडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि यहाँ पे जो आपके पास लाइट एमिट होगी दैट इट विल इनकोहेरेंट कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर जो हमें आउटपुट मिलती है वो इनकोहेरेंट होती है और नॉन मोनोक्रोमैटिक होती है। बट इफ आई टॉक फॉर द सेमीकंडक्टर लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर is based on the principle of cumulative emission. So in cumulative emission, where light will be coherent म्यूट कर ले भाई गौरव। that will be completely monochromatic or you can say highly directional. So what I want to say है कि जो एलईडी और आपका जो सेमीकंडक्टर लेजर है दोनों के अंदर आपको आउटपुट तो सेम मिलेगा कि लाइट ही मिलेगी आउटपुट में, बट इनका वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है। एलईडी इज बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो सेमीकंडक्टर लेजर है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ cumulative emission. Now we want to discuss what is the working principle of this semiconducting laser। कि जो आपका सेमीकंडक्टर लेजर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। So basically in semiconductor there is an electron hole recombination. When electrons combine with holes, then there is an electron hole recombination will take place, and during this recombination there is an emission of light, but this can be in the form of heat or it can be in the form of light. क्या जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होगा, then during this recombination there is a release of energy and that energy can be in the form of heat or it can be in the form of light, but it will depend upon the type of semiconductor कि हम कौन सा सेमीकंडक्टर ले रहे हैं। Suppose I am taking the example of silicon और जर्मेनियम। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लूं तो here when electron hole recombine then energy will release
but this energy will be in the form of heat. That energy will be in the form of heat. So if this energy is in the form of heat, so you can say they are not used for lasing action. बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में हो रही है, और हीट की फॉर्म में होने की वजह से वी डोंट एक्वायर एनी लेजर एक्शन, राइट. इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड और यू कैन से कैडमियम सल्फाइड, these are also the example of semiconductor material, and in these materials when electron hole recombine, energy will release, but that will be in the form of light. यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, लाइट की फॉर्म में होगी, और लाइट की फॉर्म में होगी तो मीन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर लेजर एक्शन. लेजर एक्शन. तो व्हाट वी कैन से हियर कि आपका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड फॉर लेजर एक्शन बिकॉज यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी तो वी डोंट गेट एनी लेजर एक्शन. बट इफ आई टेक सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड, तो इन केसेस के अंदर आपका जो एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. So these type of semiconductor material can be used for the laser action, right? उसके बाद हम बात करते हैं कि there are different types of semiconductor materials. Like if I talk for intrinsic semiconductor material, intrinsic semiconductor, because there are two types of semiconductors. First is the intrinsic semiconductor and second is the extrinsic semiconductor. So in intrinsic semiconductor, how laser activity takes place? कि laser action semiconducting materials में कैसे होगा? So first we have to know about what is intrinsic semiconductor material. तो आपका जो intrinsic semiconductor materials है pure semiconductor with no external impurity. With no impurity, right? इनके अंदर हमें कोई भी impurity ऐड करने की जरूरत नहीं होती है. These are the pure semiconductor. And if we want to define the energy band diagram, तो इनका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा, तो दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, एंड दे आर सेपरेटेड विद सम एनर्जी गैप दैट इज Eg. जो इनका जो सेपरेशन है, सेपरेशन को हमने बोला दे आर सेपरेटेड विद द एनर्जी वैल्यू ऑफ Eg. दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड. Now, if we incident a photon, if we incident केमिस्ट्री पढ़ा रही है यार. a photon of energy h nu, यहाँ से हम क्या करें, फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं having energy h nu on this intrinsic material. So what will happen? कि यहाँ पे in the valence में there is a presence of electron. Hello. These are the electrons which are present in the valence band, and this conduction band is empty. But when we are incidenting a photon on this material,
then this electron will absorb this energy. ये इलेक्ट्रॉन को absorb करेंगे एनर्जी को and they will jump to the conduction band, right? तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? What is the name of this process? बताइए. This is the absorption कि उन्होंने absorb किया and what kind of absorption? That is stimulated. कि आपके जो इलेक्ट्रॉन थे they transit from valence band to conduction band with the process of cumulative absorption, right? तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्यूजन? There is a formation of holes. यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन का नाम है. जैसे इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, then there is a formation of holes and there is a formation of electron. Right? Now what we will do? We will provide the energy to the electrons which are present in the conduction band. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आ गया है, उनको हम एनर्जी देंगे. इन कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को we will stimulate these electrons by some another photon. तो यहाँ पे जैसे हम इनको एनर्जी देंगे, then they will come back to valence band. कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है they will come back to conduction band से कहाँ जाएंगे? वैलेंस बैंड में. when we stimulate with photon having energy at nu with the process of cumulative emission. कि यहाँ पे अब हमने इनको stimulate करवाया by some external agency और they will come back to its valence band. तो जैसे वो वैलेंस बैंड में आएगी तो what will happen? There is a electron hole recombination which takes place. Electron hole recombination. Electron hole recombination will take place because यहाँ पे क्या होल जनरेट हो गए थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए? रिकम्बाइन हो गए. और जैसे आपके इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होंगे then they will release the energy in terms of light. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उस जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितना वैल्यू होगा? that is h nu, right? तो यहाँ पे आपके पास दो फोटोन रिलीज होंगे. एक आपका इंसिडेंट फोटोन होगा. we will get two photons. First photon that is incident photon और जो आपका सेकेंड photon होगा that will be emitted photon. So with the process of cumulative emission we will get two photons और ये जो दोनों photons होंगे they will have same wavelength, same frequency and same phase difference. So you can say they are coherent to each other. ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट हो जाएंगे और कोहेरेंट होंगे तो they will produce the laser. They will produce the laser beam. So this is a process of lasering action in intrinsic semiconductor. तो यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर लेजर एक्शन की बात की विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, क्योंकि वहां पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे. रूबी लेजर और विलियम न्यू लेजर के अंदर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाए थे. दैट वाज अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. बट यहाँ पे हमें जो इनकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है सेमीकंडक्टर लेजर्स के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम. के लिए हमने एनर्जी बैंड डायग्राम किसका ड्रॉ किया? एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? तो
with the help of stimulated emission, you can see that कि यहाँ पे हमारे पास लेजर एक्शन मिला है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो रहा है और with the help of stimulated emission we observe laser action, right? उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। Next is extrinsic semiconductor. So extrinsic semiconductors are impure semiconductors. Means we require some doping. We require some doping in the extrinsic semiconductor. And there are two types. First is the N type, and second is the P type. So in N type we have majority of electrons, and here we have majority of holes. Right? And in N type, we add trivalent kind of impurities, which you studied in the 12th class. Trivalent impurities. And here you add pentavalent impurities. Right? So now we will discuss how laser action will take place in N-type semiconductor and how laser action will take place in P-type semiconductor. So to discuss the laser action, again we have to draw the energy band diagram. So if I go for N-type semiconductor, in N-type semiconductor, how laser action will take place. So first we will draw the energy band diagram. This is a valence band and this is the conduction band. Conduction band. So in N-type semiconductor, if I say they are separated with energy of Eg. In N-type semiconductor, there is a donor energy level. There is donor energy level which is separated with the energy value of 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक लेवल और होता है, दैट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। लेवल देगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, कितना सेपरेशन रहता है कंडक्शन बैंड से, दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now what will happen, initially there is a presence of electron. Initially there is a presence of electron in this donor energy level. These are the electrons which are present in donor energy level at 0 Kelvin temperature. See, at 0 Kelvin temperature, there is a presence of electron. But when we increase the temperature, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मींस वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, वी विल प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि आपके पास जो टेम्परेचर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मींस दे आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम इनको एनर्जी देंगे तो दे विल जंप टू द कंडक्शन बैंड। So there will be the formation of holes inside this donor energy level. Initially आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे थे? डोनर एनर्जी लेवल पे थे, और जैसे हम इनको एनर्जी दी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो दे विल ट्रांजिट फ्रॉम डोनर एनर्जी टू कंडक्शन बैंड, राइट? कंडक्शन बैंड। Formation of holes in the donor energy level. Donor energy level. डोनर एनर्जी लेवल पे क्या हो गया? होल्स हो गए हैं, और आपका जो कंडक्शन बैंड है वहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो व्हाट विल हैपन इफ वी, this is the exit position. Now there is a formation of holes. Electrons. The temperature from 25 Kelvin to 50 Kelvin means we are giving the energy. We are giving the energy. So you can say there is a process of population inversion take place. क्योंकि इनिशियली पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा थी? डोनर एनर्जी लेवल पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, और कंडक्शन बैंड में हमारे पास पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन जैसे हमने इंक्रीज दी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव बिटवीन टू बैंड, दैट इज डोनर एनर्जी बैंड लेवल एंड द कंडक्शन बैंड। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव। Population inversion achieve हो गया तो you can say this has a cumulative emission. We will get the laser action because population inversion is the essential condition. Population inversion is the essential condition for the laser action. तो यहाँ पे आपके पास population inversion achieve हो गया, जो जैसे आपके पास population inversion achieve होगा, then with the help of cumulative emission you will get the laser action. So this is the process of laser action in n-type semiconductor. कि n-type semiconductor के अंदर हम laser action कैसे अचीव करेंगे, right? Similarly we can discuss laser action in p-type semiconductor. If I replace this n-type with p-type, so how laser action will take place in p-type semiconductor? So in p-type semiconductor, first we will draw the energy band diagram of this p-type semiconductor. So this is a valence band and this is a conduction band. And in p-type semiconductor, there is a acceptor level near the valence band. There is one acceptor level. And separation between these two bands, you can indicate with ET. And the separation between this acceptor level with this rate, small EG, small energy value, that is 0.01 electron volt. Right? So initially, what will be the position of electron? Initially, electrons are present here. Electrons are present in the valence band. Means valence band is full of electrons at 0 Kelvin temperature. There is no electron
electron, and if we increase the temperature, from few Kelvin so you can say we are providing the energy. We are providing the energy. हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दी इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द accepted level. इनिशियली आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से? दे आर प्रेजेंट इन द Valence band. But with the energy, then these electrons jump to the acceptor level, leaving behind holes. और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएंगे? Holes बच जाएंगे. So if we draw next diagram, so it will be like this. Means now holes are electrons are here, and there is a formation of Holes. यहाँ पे आपके पास होल्स रह गए हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन. Right? So again you can say condition of population inversion achieved. कि इनिशियली यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, और अब आपके पास पॉपुलेशन कहाँ पे अचीव हो गई है? एक्सेप्टर लेवल पे. तो यू कैन से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव. और जैसे आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी you can get the laser action. Because population inversion is a mandatory condition, और जैसे population inversion achieve होगा तो with the help of cumulative emission you can get the laser action, right? So we discussed how laser action will take place in both type of semiconducting material, whether it is एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल या वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो. तो इन दोनों के लिए वी हैव टू ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम. विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम यू आर एबल टू एक्सप्लेन दी हाउ लेजर एक्शन टेक्स प्लेस इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, राइट? उसके बाद आपका आता है इंजेक्शन लेजर. इंजेक्शन लेजर. तो जो आपका इंजेक्शन लेजर है, इट इज अ काइंड ऑफ एलईडी. ये आपका एलईडी की तरह दिख रहा है. इट इज सिमिलर टू लाइट emitting diode. But why we are using the word injection? तो इंजेक्शन का मतलब क्या है कि here we are injecting the current. We are injecting the current. यहाँ पे हम करंट इंजेक्ट करवाएंगे. That's why we are using the word injection laser, right? So how to construct this injecting laser? तो इसके लिए we required a PN junction diode. We require a PN junction diode that is in the form of rectangular wafer. तीन रेक्टेंगुलर वेफर, और उसका हम डायमेंशन क्या लेते थे? 1 mm, क्रॉस 1 mm, क्रॉस 260 माइक्रोमीटर. यहाँ पे हमें एक ट्यूब की फॉर्म में पीएन जंक्शन लेना है, और उसका डायमेंशन क्या रहेगा? 1 mm क्रॉस 1 mm क्रॉस 260 माइक्रोमीटर. अप्रोक्सीमेट ये उसका हम डायमेंशन ले सकते हैं. एंड इसके जो टू एंड तो जो आपके जो आउटर जो एंड होंगे, आउटर एंड दे विल फॉर्म अ रेजोनेटर कैविटी.
they will form a resonator cavity. कि एक आपका partially reflected होगा और एक आपका क्या रहेगा, fully reflected रहेगा, and they will form a resonator cavity. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, so how we will do this? Like this. यहाँ पे हमने एक PN जंक्शन दिया है and this is we can say P type, ये मैंने ले लिया and right, और इनके बीच में I'm taking a depletion layer. This is a depletion layer. इसको ये साफ अपर एंड है, इसको यू कैन से दिस इज पी टाइप एंड नीचे आपका क्या है एन टाइप, राइट. अब ये जो आपका फेस है दिस इज आउटर फेस, इसको ब्लैक से लिखिए. ये जो हमारे आउटर फेसेस हैं इनको हमने क्या बोला है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूट एंड दिस इज टेक्निक. So this is 100% reflecting and this is you can say 98% reflecting and they are forming a resonator cavity, right. अब इस PN जंक्शन को we will connect with external battery source. इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस जंक्शन को. तो व्हाट विल हैपन कि जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करवाएंगे व्हेन दिस PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि आपका जो P टाइप है दैट विल कनेक्ट विद P टाइप और आपका जो N टाइप है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करवाया और P टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करवाया. तो जैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो मेजरली चार्ज कैरियर है मींस जो आपके P टाइप के अंदर जो होल्स हैं, P टाइप के अंदर जो होल्स विच आर मेजरली चार्ज कैरियर दे विल रिपेल from the positive terminal of the battery. और जो आपके N टाइप के अंदर जो मेजरली चार्ज कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन they will repel from negative terminal of battery. तो ये दोनों रिपेल करके क्या करेंगे, दे स्टार्ट टू डिप्लीट. क्या कि जो P टाइप के अंदर जो होल्स है वो इधर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो N टाइप के अंदर जो मेजरली इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट टू कलेक्ट हियर. मींस P टाइप के अंदर आपके पास मेजरली चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, they will repel from the positive terminal of the battery. तो वो रिपेल होके इस रीजन से अंदर आने की कोशिश करेंगे और जो आपके N टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिपेल हो जाएंगे इस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड दे विल स्टार्ट टू रीच नियर दिस. इस रीजन के अंदर डिप्लीट होने की कोशिश करेंगे. तो यू कैन से कि इन दिस रीजन, ये जो रीजन मैंने बनाया है, इन दिस रीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, formation of electron hole recombination. If over
ऊपर से तो आपका इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नीचे ऊपर से आपके होल्स आ रहे हैं, और नीचे से आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल रिकम्बाइन टू ईच अदर, और जैसे वो रिकम्बाइन होंगे दे विल प्रोड्यूस द लाइट, दे विल प्रोड्यूस लाइट। तो जो आपके पास लाइट प्रोड्यूस होगी फ्रॉम दिस रीजन, लाइट जो लाइट एमिट होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेजर। राइट, तो आपका जो इंजेक्टिंग लेजर है, इंजेक्टिंग लेजर के अंदर हमने एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया, और उस पीएन जंक्शन डायोड को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, एंड ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग देयर इज अ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, and due to electron hole recombination there is a formation of light, that is light will produce, and that is you can say the laser is emitted in the injecting material, or you can say with the help of injection laser, right? So these are the three different types of materials, like intrinsic materials के अंदर लेजर एक्शन कैसे हुआ, एक्सट्रिंसिक के अंदर कैसे हुआ, and what is how this injection laser works. After that, we will discuss about some advantage and disadvantage of this semiconductor laser. तो जो आपका सेमीकंडक्टर लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, इसका जो डायमेंशन होता है वो स्मॉल डायमेंशन होता है, बिकॉज ये पीएन जंक्शन डायोड से बनना होता है, तो उनका जो डायमेंशन है दैट इज वेरी स्मॉल डायमेंशन, एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल डायमेंशन इट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वांटम एम्पलीफायर। For high sensitivity, कि अगर हमें क्वांटम मतलब कि छोटे साइज के एम्पलीफायर बनाने हैं तो उसके अंदर हम सेमीकंडक्टर लेजर्स का यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल प्रोवाइड अस एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिविटी। सेकंड, यू कैन से इट हैज लो पावर कंजप्शन। इसके अंदर जो पावर कंजम्पशन होगा वो बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट, इट इज वेरी, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या फिर पीएन जंक्शन डायोड चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। हमें बहुत हाई क्वालिटी का या फिर बहुत हाई टाइप की मशीनरी नहीं चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेमीकंडक्टर लेजर, राइट। नेक्स्ट है कि इसको हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। अगर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने हैं तो इनको हम यूज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर लेजर यूज्ड विथ BJT, bipolar junction ट्रांजिस्टर, और यू कैन से एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उस सर्किट के अंदर हम सेमीकंडक्टर लेजर्स को कंबाइन इंटीग्रेट करवा सकते हैं विद बीजेटी और एफईटी और एनी अदर डिवाइस, और इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और नेक्स्ट यू कैन से कि ये दे आर वेरी इकोनॉमिकल। इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, तो दे आर वेरी इकोनॉमिकल। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। तो सेमीकंडक्टर लेजर का जो सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि इसका डायमेंशन बहुत छोटा होता है,
तो डायमेंशन छोटा होता है तो इसका फोर्स कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, तो दे आर वेरी इकोनॉमिकल। और स्मॉल डायमेंशन मींस इसका जो कंस्ट्रक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी रहता है, तो यू कैन से कि जो सेमीकंडक्टर लेजर को फैब्रिकेट करना बहुत आसान है, तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। और यहाँ पे हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो दे रिक्वायर वेरी लो पावर कंजंक्शन। और इनका स्मॉल डायमेंशन होता है, नैरो डायमेंशन होता है। तो ड्यू टू नैरो डायमेंशन हम इनको किसी भी सर्किट के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं, किसी भी सर्किट के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे एसपीटी के साथ और बीजेटी के साथ, उसके साथ उसको इस सेमीकंडक्टर लेजर को हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं। और इंटीग्रेट करवाने के बाद हम वो कंप्लीट सर्किट को किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसके अंदर हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चाहिए, लाइट से रिलेटेड जो डिवाइस होंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट और एक इसका क्या है कि हम क्वांटम एम्पलीफायर स्मॉल साइज के अगर हमें एम्पलीफाई चाहिए क्वांटम में स्मॉल डायमेंशन की मिनी एम्पलीफायर चाहिए, तो हम उसके अंदर सेमीकंडक्टर लेजर्स को फिट कर सकते हैं, और वो जो ओवरऑल उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो बहुत ही हाई होगी। तो व्हाट वी कैन से कि ये ओवरऑल इसके लो डायमेंशन की वजह से ये हमें इसकी एडवांटेजेस मिलती हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर लेजर। कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो जिसका पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो ये और भी सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। कि these are temperature dependent, तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ लेजर will affected by temperature। कि टेम्परेचर चेंज होने से इसकी जो आउटपुट है दैट बिकम चेंज, तो इट इज affected by the temperature because semiconductor materials has temperature dependent property, right? Second इसका जो drawback है that is large beam divergence। large beam divergence, large beam divergence का मतलब क्या है, scattering, scattering after certain distance। लार्ज बीम डाइवर्जेंस का मतलब है कि बीम डाइवर्ज हो जाएगी। जनरली जो आपका लेजर होता है उसके अंदर डाइवर्जेंस बहुत कम होता है, मतलब कि आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी बीम के अंदर स्कैटरिंग नहीं होती है। सपोज अगर आपके पास लेजर सोर्स है, तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के बाद बीम स्कैटर होना स्टार्ट होती है। तो देयर इज इसका जो डाइवर्जेंस है, देयर इज वेरी नैरो डाइवर्जेंस होता है, इसका प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। इसके अंदर जो स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, बट सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो ज्यादा होता है कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो बीम है वो होना स्टार्ट होता है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बीम के अंदर हमें क्या मिलने स्टार्ट करती है, स्कैटरिंग। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज स्मॉल और यू कैन से थिन नैरो एक्टिव रीजन। जो अभी हमने इंजेक्शन लेजर ड्रॉ किया था, तो उसके अंदर ये आपका पी टाइप था, ये आपका एन टाइप, और यहाँ पे जो ये डिप्लीशन लेयर जो आपका रीजन था वो बहुत ही नैरो था। ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ दिस एक्टिव रीजन और डिप्लीशन रीजन, ये जो रीजन है इस रीजन को हम एक्टिव रीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी रीजन के अंदर हमें लेजर एक्शन मिल रहा है। तो ये जो रीजन है वो बहुत ही नैरो है। ड्यू टू दिस नैरो रीजन, narrowness of this active region, it
इसके अंदर जो हमें डाइवर्जेंस है वो ज्यादा मिलेगा कि आपकी जो बीम है दैट बिकम डाइवर्ज आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो बीम डाइवर्जेंस किस ऑर्डर का होगा, अराउंड 200 to 400 मिली रेडियन। इसको हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल, कि आपकी जो बीम है वो कितने एंगल से डाइवर्ज हो रही है, कि कितने एंगल से वो स्कैटर्ड हो रही है इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है। और जो इसका थर्ड ड्रॉबैक है दैट इज लो पावर प्रोडक्शन। थर्ड इज लो पावर प्रोडक्शन, कि आपका जो पीएम जंक्शन है उसके अंदर हमें इनपुट भी कम देना पड़ता है। लो पावर कंजंक्शन है तो इट विल प्रोड्यूस अ लो पावर, कि इसके अंदर हमें जो आउटपुट मिलेगी दैट विल हैव अ लो पावर। तो लो पावर प्रोडक्शन है तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल टिपिकल एप्लीकेशन। ये वो टिपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए अगर हम इसको यूज करना चाहें तो दिस लेजर कैन नॉट बी यूज, क्योंकि यहाँ पे जो हमें पावर है वो बहुत लो पावर प्रोडक्शन है, और इसी लो पावर से वी आर नॉट एबल टू कट एनी डिवाइस या एनी मटेरियल को हमें कट करना है या फिर वेल्डिंग करनी है, बिकॉज फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क वी रिक्वायर हाई पावर प्रोडक्शन होगी, देन ओनली वी आर एबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ वर्क, कटिंग ऑफ एनी मटेरियल या फिर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल के अंदर जो कटिंग और वेल्डिंग का जो पर्पस होता वर्क होता है दैट वाज नॉट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टिंग लेजर। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज करते हैं कि अगर हमें कोई भी कॉम्पैक्ट डिजाइन का सर्किट बनाना है तो हम सेमीकंडक्टर लेजर को उस डिवाइस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पर्पस लार्ज स्केल के लिए हम बात करें तो सेमीकंडक्टिंग लेजर का हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसका जो आउटपुट पावर प्रोडक्शन है वो भी बहुत ही कम है। तो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक ऑफ द सेमीकंडक्टिंग लेजर। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका टेम्परेचर डिपेंड है, कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनकी जो आउटपुट है दैट विल चेंज। सेकेंड है कि इसके अंदर लार्ज बीम डाइवर्जेंस होता है, और थर्ड क्या है कि दे हैव लो पावर प्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टिंग लेजर। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि रूबी लेजर क्या होता है, देन वी डिस्कस अबाउट द हीलियम नियॉन लेजर, एंड इन टुडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टिंग लेजर, राइट। So I think for today lecture it is all. In the next lecture we will discuss last type of laser, and then we will start our next topic. कि आपका जो लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लेजर फिनिश कर देंगे, एंड इन द आफ्टर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें we will start any new topic, right? Thank you.